from those two equations we have to find whether the equation is inconsistent or consistent. If it is consistent, then we have to find the solution by graphically we have to find the solution. So, for how to know consistent and inconsistent. Consistent means what? The equation has a either it has a unique solution or many solution. If unique solution, then we know that a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. That means in the graph how the two straight line will intersect each other at one point, and if it is infinitely many solution, that is also consistent. So, how the ratios a1 upon a2 will be equal to b1 upon b2 and c1 that equals to c1 upon c2. That means coincident lines. Okay, so there what? Infinitely many solutions. So, before plotting the graph, or first what we have to see whether it is consistent or inconsistent. Let's see what is a1, b1 and c1 and a2, c2, a2, b2 and c2, that we shall find it out. Now, see in this question what is saying, which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent. These two equations he has given, x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10. Whether this is consistent or inconsistent, that we have to find out. Suppose consistent has come, then we have to solve in the graph. Graphically we have to find the solution. If it is one solution or many solutions, that we can find from the ratios. Now, let us see what is a1 ratios. Find the ratios of a1, a2 and a1, b1 and c1. So, ratios of a1 upon a2 निकालेंगे, फिर b1 upon b2, then c1 upon c2 ratios we should take it out. So, what is, if it is consistent, if the equation is consistent, then what happen? a1 upon a2 should not be equals to b1 upon b2. These ratios will not be equal. That means what? The equation is what? Consistent. And how? If graphically, then we shall go for a graph. Graphically, if you will find that how it will come, the unique, it has got it, if it is not equal, then it has got what? Unique solution. That means straight lines, ST लिख रही हूँ, straight lines intersects each other. Intersects each other at one point. That point is known as a point of intersection. समझ में आ गया? अब इनकन्सिस्टेंट में ये आने से भी कंसिस्टेंट, नहीं तो ऐसा आने से भी कंसिस्टेंट होगा. क्या है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 has come. Then c1 also, c1, c2 we have to take it out. That also equal has come. Then what? This is also a consistent. इसको भी हम क्या कहते हैं? consistent. मतलब consistent many solution आने से भी consistent होगा, unique solution आने से भी consistent होगा. इसमें ग्राफ में देखोगे infinitely many solution होगा, infinitely many solutions. That means what? Coincident lines will be there. Coincident lines will be there in the graph. So, ये तो हम ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे, बट बिफोर दैट वी कांट से एनीथिंग, जस्ट वी शुड सी वेदर इट इज़ कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट. कॉन्सिस्टेंट में ये दो रीजन्स आर देयर. देन इनकॉन्सिस्टेंट. व्हाट इज इनकॉन्सिस्टेंट? इन inconsistent what? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then it has no solution. ठीक है, वो कह रहे ये अगर आ गया, ऐसा आ गया तो और सॉल्व नहीं करना. लेकिन अगर ग्राफ में करोगे तो हमारा क्या है? पैरेलल लाइन आएगा. ग्राफ में अगर करेंगे तो टू स्ट्रेट लाइन्स सर parallel to each other.
y equals to 5. Another is 2x plus 2y equals to 10 है. तो अब देखो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. सो कभी ऐसा भी दे सकता है, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ऐसा भी हम कर सकते हैं. इसमें से हम a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 हम निकाल सकते हैं. अगर इक्वेशन ऐसा रहने से भी हम इसी तरीक़ा से ही निकालेंगे. तो हमारा a1 हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 हो जाएगा, b1 क्या हो गया, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 हो गया, c1 क्या हो गया यहाँ 5 हो जाए. लेकिन यहाँ क्या है -5 हो जाएगा, यहाँ भी -8 कांस्टेंट c2 -10 होगा, यहाँ c1 -5 होगा. लेकिन इस तरीके से करने, इस तरीके से भी कर सकते हो. दैट मीन्स दिस कांस्टेंट कैन बी दिस साइड और राइट हैंड साइड, or the constant can be in the left hand side. You can do it. Suppose if the equation is like that, x plus y equals to 5 है, दूसरा इक्वेशन 2x plus 2y minus 10 equals to 0. ऐसा होने से इसको a1 ले लिए, a1 equals to 1 और b1 equals to 1 and c1 equals to 5. यहाँ a1 2 हो जाएगा और b1 क्या है 2 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा -10. तो लेकिन ऐसा नहीं लेना, तो ऐसे कभी नहीं लेना. दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं लेना. तो अगर दोनों, अगर कांस्टेंट इक्वल का राइट हैंड साइड अगर है तो दूसरा इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 ऐसा भी कर सकते हो. नहीं तो इक्वेशन का इस तरफ रहने से भी हम कर सकते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स -5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ऐसा दोनों को इक्वल का कहाँ है, राइट लेफ्ट हैंड साइड रखे हैं, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी -10 लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसा भी रख सकते हैं. लेकिन इस इक्वेशन में इसमें देखो x प्लस वाई इक्वल 5, यहाँ कांस्टेंट क्या है RHS से है, इक्वल का RHS साइड है. इस इक्वेशन में देखो द कांस्टेंट किस तरफ का है RH है, तब करेक्ट है. लेकिन यहाँ देखो इक्वेशन का क्या है, कांस्टेंट किस तरफ का है RH से, RH साइड है. यहाँ इस इक्वेशन में द कांस्टेंट किधर है LHS से है. इसलिए ऐसा नहीं, दोनों को एक ही तरीके से लेना. ठीक है. तो एक ऐसा एक वैसा करके नहीं लेना. मतलब ऐसा मतलब इक्वल का RHS से, इक्वल का RHS साइड में कांस्टेंट है, दूसरे इक्वेशन का इक्वल का कांस्टेंट किस तरफ का है, इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड है. ऐसा नहीं करना, दोनों को एक ही तरीक़ा से ही करना है. अगर ऐसा दिया तो आराम से इसमें से भी a1 b1 c1 इसको ले लोगे, a2 b2 c2 ले लोगे, कोई वो नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब सॉल्व करेंगे. Our first equation is what? X plus y equals to 5. Here what is our a1? a1 is 1, b1 is 1 and c1 is 5. What is our second equation? 2x plus 2y equals to 10. What is our a2? a2 equals to 2, b2 equals to 2, c2 equals to 10. Now we shall find the ratios. So a1 upon a2 equals to 1 upon 2. Okay. b1 upon b2 equals to ये दोनों का 1 upon 2. Then c1 upon c2 equals to these two 5 upon 10. ये हो गया. तो हो गया. अभी देखो इसमें से क्या पैटर्न आया, सारे में ये भी हाफ आया, ये भी हाफ आया, ये भी हाफ आया. फ्रॉम दिस इज 5 1 सर 5, 5 2 सर. दैट एम्प्लाइज c1 upon c2 equals to 1 upon 2. Now from this we say that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. That equals to क्या आया 1 upon 2. All are equal. That means therefore the given
equation is what? Consistent. The given equation is consistent. अब consistent that means क्या है? Infinitely many solution. हमको पता है ये हम अपने infinitely many solutions हैं क्योंकि all are equal. that means ग्राफ में हमारा क्या आया? वहाँ एक के ऊपर एक आएगा. अब सॉल्यूशंस के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कर दिए. ये तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट रखना है जब सॉल्यूशन निकालते वक्त, तो वो रह गया. अभी x कोई भी को वेरिएबल को अकेला करना है, x को अकेला रख दिए, 5 ये y को इस तरफ भेज दिए, 5 माइनस वाई हो गया. अब इफ अभी क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे x और y. अभी इफ y इक्वल्स टू 0 करेंगे, 0 कर दिए, x क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, x इक्वल्स टू 5. हमारा सोल्यूशन क्या आया? x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 0, 5 और 0 ये हो गया. और सेकंड सोल्यूशन क्या करेंगे हम? अभी सेकंड सोल्यूशन y को 5 लेंगे. हाँ, x इक्वल्स टू क्या है? 5 माइनस वाई है. इफ y इक्वल्स टू 5 करेंगे, सो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई के जगह में 5 को डाल देंगे, 5 डाल दिए, दैट इक्वल्स टू 0. x क्या आ गया? 0, y 5 हो गया. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया. अब चलेंगे सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. अब इसको हम 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 हो गया. अभी 2x इक्वल्स टू क्या करेंगे? 10 माइनस 2y. ठीक है. अब x इक्वल्स टू, x को अकेला करना है, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y अपॉन 2. इफ y इक्वल्स टू 0. अब इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएं. ये है x है y को हम क्या लिए? 0 लिए. अब x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0, y के जगह में 0 डाल दिए, है ना, दैट अपॉन 2, दैट इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, दैट इज़ 5. y आ गया 5. ठीक है. फिर इफ y इक्वल्स टू 5 करेंगे, सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 5, ये y की जगह में यहाँ डाल दिए, अपॉन 2, 10 माइनस 10 इज 0, 0 अपॉन 2 इज 0. अभी x इक्वल्स टू 0 आया, y क्या 5 है. अभी हम इसका सोल्यूशन क्या है? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5. ठीक है. इसमें भी यहाँ हम लिखे नहीं, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 5. ठीक है. ये है सोल्यूशन. अब चलेंगे ग्राफ में, मैंने ग्राफ करके रखा है. ठीक है. यू सी हियर फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. तो x का क्या है? हमने 5 और 0, 0 और 5. ये हमारा हो गया ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर के ऊपर हम स्केल से ये क्या किया? ऐसा ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है x डैश है, ये है x है. ठीक है. और ये है वर्टिकल लाइन है, ऐसा करके ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन है, ये हो गया y है, ये y डैश है. तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए? 0, 0 में इंटरसेक्ट किए. अभी इसको हम 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 करके दिए. 1 2 3 4 5 6 करें. यहाँ हमारे और इधर का भी 1 2 3 4 5 करके ये किए 6. और इधर -1 एंड ये है -2, ऐसा -3 करके इधर का. और इधर है x 0 टू x डैश का -1, यहाँ से यहाँ तक -2 है, यहाँ से यहाँ तक -3 है, यहाँ से यहाँ तक -4 करके ऐसा ड्रॉ कर दिए. अब कोऑर्डिनेट्स लेंगे 5 और 0. x इज़ 5. यू सी दिस इज़ आवर x फ्रॉम 1 2 3 4 5. दिस पॉइंट 5 है. ठीक है.
5 और y क्या है 0 है, सो दिस इज द 5 0। और दूसरा क्या है, दूसरा है 0 और 5, x इज 0 y इज़ 5, ये है y इज़ 5, ये है सेकंड बी पॉइंट। ए और बी को ज्वाइन किए, ये पर्पल लाइन आ गया। तो यहाँ हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 करके ये इक्वेशन डाल दिए, दिस इज आवर L1। फिर सेकंड इक्वेशन का क्या है, 0 और y है, 0 और 5 है, 0 कहाँ है, x का 0 है, y का 5 है, y का 5 है, यही सेम पॉइंट, ये लो बोथ कोइंसिडेंट सेम पॉइंट में आ गया, सेम पॉइंट के एक उसका भी वही है, इसका भी वही पॉइंट आया। फिर दूसरा है 5 और 0, ये पॉइंट है, ये दोनों को ऐड किया तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन आया, सो इट इज़ कोइंसिडेंट लाइन। सो ईच पॉइंट ऑफ दिस equation, each point is the solution of the equation. Let's see, this is the 4 and this is 4 के साथ ये पॉइंट देखो, ये 4 के सीधा कौन सा ये पॉइंट है 1, 4 और 1, ये फर्स्ट इक्वेशन में डालो, 4 और 1 है तो x इज़ 4 y इज़ 1, यू सी 4 प्लस 1 इज़ 5 आ गया। सेकेंड 4 2 सर 8 एंड 1 2 सर 2, 8 प्लस 2 इज़ 10, सो दिस ये भी हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का ये भी एक सोल्यूशन होगा। दूसरा सोल्यूशन आप कुछ भी ले लो, अभी क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 के साथ 2 है, x इज़ 3 y इज़ 2, 5 हो गया, 3 प्लस 2 3 और 2, और यहाँ है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 2 सर 6, 2 2 सर 4, सो 10 के साथ 10, ये भी हमारा सोल्यूशन हो गया। सो एनी पॉइंट यू टेक that here also you can take, this is 2 के साथ 3, so x is 2 y is 3, so 2 plus 3 is 5, यहाँ 2 2 सर 4, 2 इंटू x क्या है 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 2 सर 4, 3 2 सर 6, 6 प्लस 4 इज़ 10, ये 10 के साथ ये 10 हो गया, सो ये भी सोल्यूशन है, इसीलिए मिनी सोल्यूशंस हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली, अगर नहीं तो नहीं है, फिर नो सोल्यूशन करके छोड़ देंगे, इट इज़ इनकॉन्सिस्टेंट करके छोड़ देंगे। अभी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ a1 क्या होगा, a1 इक्वल्स टू 1, b1 इज़ -1, ये है साइन के साथ लिखना है, और c1 इज़ 8, हमारा राइट हैंड साइड है कांस्टेंट, दूसरा इक्वेशन का भी राइट हैंड साइड है, तो सो यू नीड नॉट चेंज इट, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सो अभी हमारा a2 क्या आएगा, a2 इज़ 3, b2 इज़ -3, c2 इज़ 16, तब ये a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इज़ 1/3, फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, -1 अपॉन -3, दोनों साइड माइनस है, प्लस कर दिए, दैट मीन्स दैट एम्प्लाइज b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 1/3, ये आया b1 अपॉन b2, ठीक है। और नेक्स्ट है c1 अपॉन c2 क्या आया, c1 इज़ 8, c2 is 16, 8 1 sir 8 2 sir, that implies c1 upon c2 इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या ऑब्जर्व किए, एक है ये वाला हम ऑब्जर्व किए 1/3, ये भी 1/3, ये है 1/2, दैट मीन्स a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, therefore the equation is इनकॉन्सिस्टेंट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट हो तो ऐसे ही छोड़ दो और सॉल्व मत करना, कहा है तो करेंगे नहीं, बस हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी देखो इक्वल का इस तरफ को दिया है, इसमें दूसरा इक्वेशन भी इस तरफ का है या नहीं, या कांस्टेंट एक ही, सारे एक ही तरफ है, ओके। सो a1 इज 2
B1 इज 1, C1 इज -6। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। A2 इज 4, B2 इज -2, C2 इज -4। अभी A1/A2 उसका हम निकालेंगे, क्या है, रिलेशंस निकालेंगे। A1/A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, 2 1s are 2 2s are, that implies A1/A2 = 1/2 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे B1/B2 करेंगे। B1/B2, B1 क्या है हमारा 1 और ये है -2, दैट एम्प्लाइज क्या है B1/B2 क्या आया -1/2। फिर C1/C2, C1 क्या है, C1 इज -6, C1 is -6 and C2 is -4, so 2 3s are 2 2s are, that implies C1/C2 = 3/2. From this what we got, A1/A2 is not equals to A1/A2 is not equals to B1/B2. That means therefore the equation is consistent। ठीक है, अब चलेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्या है 2x + y - 6 = 0। इसको जब एक सॉल्यूशन निकालेंगे कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2x + y = -6 जब इधर को आ जाएगा +6 हो गया। अभी y = 6 - 2x। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट्स बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट बॉक्स बना के क्या करेंगे, x को क्या लेंगे 0 लेंगे। इफ x = 0 then y = 6 - 2 × 0, therefore y = 6। x है y है, x को क्या लिए 0 लिए, y आ गया 6। ठीक है, अब ये सेकंड क्या है, इफ x = 3 लेंगे, =3, सो y = क्या है 6 - 2x है, सो दैट = 6 - 2 × x का वैल्यू क्या है 3 है, डाल दिए 6 - 6 = 0, सो y 0 आ गया, x is 3 आ गया। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन इज 4x - 2y - 4 = 0। नाउ दैट इक्वल्स टू 4x - 2y = 4। हमेशा सॉल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को हमेशा ये लें, दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट यू मेक द वेरिएबल्स एलोन। अब कौन सा लेंगे, इसको छोटा कर देंगे, 2 से डिविजिबल हो गया, सो 2x - y = 2। अभी 2y को ले लेंगे, सो 2x इधर को -2 = y, सो y = 2x - 2। अभी y का इसका कोऑर्डिनेट्स खींचें, x एंड y। अभी x को हम अगर 1 लेंगे, x = 1, then y = 2 × 1 - 2, then y = 2 - 2, that equals to 0। y 0 हो गया, x हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है इफ x is 2 करेंगे, y = 2 × 2 - 2, then y = 4 - 2 = 2, y 2 हो गया, x 2 हो गया। ठीक है, अब आ गया सॉल्यूशंस। इसको लेकर हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ में मैं ग्राफ बना के रखा है, अब देखें ग्राफ में क्या आ रहा है। 2x + y
-6 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, 0 और 6 है। अब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब मालूम है, तो ये है एक्स एक्सिस ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 है। फर्स्ट इज व्हाट, 0, एक्स इज 0 वाई इज 6, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। सेकेंड इज एक्स इज 3 वाई 0, दिस पॉइंट। ओके, ये दोनों को हम ज्वाइन किए, ये लाइन आ गया, दिस इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन डाल दिए। अभी सेकेंड इक्वेशन, x इज 1 वाई इज 0, x इज 1 वाई इज 0, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ओके, फॉर रेड लाइन का ये पॉइंट है, ये है रेड लाइन, तो ये पॉइंट है 0। सेकेंड इज 2 2, x इज 2 y is 2, so this point, second point, these 2 points, so these two intersects at what point, this point. From here you draw the perpendicular, it touches the 2 of x, and this side from perpendicular line you see here, this is 2, so x is 2 y is 2, this is the solution of the equation। समझ गए, ठीक है। अब हो गया, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लिखेंगे क्या, द इक्वेशन इज consistent and the solution of the equation is क्या, x equals to 2 y equals to 2, this is the answer। Now see this question, same consistent or inconsistent, if consistent we have to find the solution graphically कहा। तो अभी 2x minus 2y क्या इक्वेशन क्या है, 2x minus 2y minus 2 equals to 0। तो अभी consistent है या inconsistent देखेंगे, तो a1 is 2, b1 is minus 2, c1 is minus 2, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन चलेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a2 इज व्हाट, 4, b2 इज माइनस 4, c2 इज माइनस 5। नाउ लेट्स सी द रेशियो a1 अपॉन a2। a1 हमारा क्या बच्चे, 2 और a2 इज 4, 2 1s are 2 2s are, that equals to 1 upon 2, a1 upon that implies a1 upon a2 equals to 1 upon 2 आ गया। फिर b1 upon b2 निकालेंगे, b1 upon b2, b1 क्या है -2, b2 क्या है -4, -1 प्लस 1 2, that means that equals to 1 upon 2, that implies b1 upon b2 इक्वल्स टू हाफ आ गया। अभी c1 अपॉन c2, c1 क्या है -2 अपॉन -5 है ना, -2 और -5 डाल दिए, दैट इक्वल्स टू व्हाट, दैट एम्प्लाइज c1 अपॉन c2 इक्वल 2 अपॉन 5। फ्रॉम दिस यू सी, फ्रॉम दिस व्हाट वी ऑब्जर्व, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 है ना, this one is equals to this one है ना, ये आया। पूरा अलग है, b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, that means the equation is inconsistent। दैट मीन्स नो सोल्यूशन। ग्राफ में करेंगे तो पैरेलल आएगा, लेकिन उसने बताया अगर नो इनकॉन्सिस्टेंट हो तो सोल्यूशन निकालने का ज़रूरत नहीं, इतना करके हम आंसर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया है ना, ये करके आंसर डाल देंगे। सो थैंक यू वेरी मच by watching my video. Bye bye.